was issued on 7th August 2025. In all, 68 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy and Shri C.P. Radhakrishnan were found valid. As you are aware, in the vice presidential election, all members of parliament, including the nominated members, are eligible to cast their votes. There are 788 electors, 245 from Rajya Sabha and 543 from Lok Sabha. There are 6 vacancies in Rajya Sabha and 1 vacancy in Lok Sabha. Thus, there are 781 electors. The polling for the Vice Presidential Election 2025, which commenced at 10 a.m. today, the 9th of September 2025, in room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and 1 postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से
इस बात को बताया जा रहा था एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ के बाद ये जो पोस्ट थी वो खाली हो गई थी, जिसके मद्देनजर पहले तो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद तैयारियां दोनों पार्टी की तरफ से एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में, और फिर सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। हालांकि लगभग ये फाइनलाइज्ड भी था क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा था वो एनडीए के पास पहले से नजर आ रहा था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही। और अब उपराष्ट्रपति का रण जीतते हुए सीपी राधाकृष्णन ने अपने पोस्ट को अक्वायर किया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टर है। अदिति, लगभग ये फाइनलाइज भी था, हालांकि क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं, इसीलिए ये मतदान जरूरी था और सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। 552 वोट्स, माफ कीजिएगा 452 वोट्स। अदिति, बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे ये पता भी था और एक बड़ी जीत की तरह भी है जिस तरीके से पूरी प्लानिंग पार्टी ने करी। लेकिन आपने कुछ एक खास बात देखी होगी, इस चुनाव में क्षेत्रीयवाद नहीं चला। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखें कि अगर उनका जिक्र करें, जैसे कि तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन जो विपक्ष की जो तमिलनाडु की अदिति मैं वापस आती हूँ आपके पास, जरा सुन लेते हैं क्या बातें हो रही है। सब के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। पंद्रह 767। धन्यवाद। तो सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। एक बार फिर से आपको अदिति के पास लिए चलते हैं। अदिति, जैसा कि मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे, लगभग ये प्रक्रिया पूरी फाइनलाइज थी, क्रॉस वोटिंग के चांसेस थे। आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा अदिति। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था, एनडीए को बड़ी जीत मिली है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। 452 वोट्स मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी, एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। अभी ये जानकारी दी गई। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट्स मिले और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले और राधाकृष्णन जीत गए हैं। हालांकि संसद के दोनों सदनों का आंकड़ा भी यही कह रहा था, लेकिन इस तरीके के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया होती है। नतीजों का ऐलान अभी हुआ है। एनडीए ने मैदान में बाजी मारी है। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ और इसके बाद आज वोटिंग भी सुबह, और वोटिंग के बाद वोटों की गिनती भी और नतीजों का ऐलान अब से कुछ ही देर पहले हुआ है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। जी अदिति। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए के 452 और इंडिया ब्लॉक के 300 वोट पड़े हैं। अब सबसे पहले तो आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि तैयारियों चल रही है स्वागत की। आज रात को डिनर भी है और आप देखेंगे जो जहां पर रहते हैं अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति, वहां पर पूरी तैयारी ऐसे हो चुकी है, फूलों से सजा दिया है उस घर को और वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त कर दी गई है। और क्योंकि आज शाम को तमाम जो सांसद हैं वो अपना डिनर करने वहां पर पहुंचेंगे एनडीए के, तो पूरी तैयारी है कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, उनको बधाई दी जाएगी। पूरा एनडीए उस जश्न को मनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी थी उसी अनुरूप तमाम चीजें हुई है। एक बड़े मार्जिन, मतलब अब मार्जिन का जिक्र करें वो डिबेटेबल हो सकता है। वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी ये मान रहा है कि हमारी जो जीत हुई है, जैसे कि उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान जैसे ही खत्म हुआ, सूत्रों ने इस तरह के अंदेशे देने शुरू कर दिए थे कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी खबर ये मानी जा रही थी कि अभी तक के जितने भी उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, विपक्ष सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। और देखिए इंडिया ब्लॉक को 300 नंबर मिले हैं, 300 वोट।
और चुनाव की हार जरूर हुई, लेकिन मॉरल जीत हुई, क्योंकि हम बार बार बिहार का ग्राउंड अगर देखें तो जो एकजुटता वर्सेस एकजुटता जो दिखाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है, और वो एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि आप, जैसा मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वाईएसआर ने वोट नहीं किया, जबकि वाईएसआर वहां से आते हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि केसीआर ने वोट नहीं किया, तेलंगाना से है, और इंडी गठबंधन का जो प्रत्याशी थे वो तेलंगाना से थे। तो कहीं ना कहीं रीजनल फैक्टर नहीं चला, यहाँ पे लामबंदी चली है। इंडिया गठबंधन लामबंद हुआ तो वहीं एनडीए तो लामबंद और उस प्रोटोकॉल में रहता ही है। तो यहाँ पर लामबंदी चली है, ताकत दिखाने की कोशिश की है, कम मार्जिन ही एक जो था। तो कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत मना रही है, वैसे इंडिया गठबंधन भी, कि हमारा मार्जिन जो है हमने कम छोड़ा है, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ ताकत दिखती है, एकजुटता दिखती है, वो एक बताने की कोशिश की गई और है। यही कोशिश एनडीए गठबंधन की अदिति थी भी, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी किया गया विपक्षी पार्टी की तरफ से, और यही वजह थी कि जब इस पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई उस समय से लामबंद होते हुए जो विपक्षी पार्टी है वो दिख रही थी। आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं अदिति, राज्यों में क्या मैसेजिंग देने की कोशिश, और जो आंकड़े आए हैं 452 के और 300 के, क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया गठबंधन पे लोगों को ट्रस्ट केवल इसीलिए नहीं था क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि राज्यों में अलग अलग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं एकजुटता नजर नहीं आती। इसलिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके से स्टैब्लिश मुंबई की बैठक या पटना की बैठक में एक जमाने में हो रहा था, वो नहीं हो पाया क्योंकि रीजनल पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट आया। तो इस बार कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने ये कोशिश की है कि उनका जो एकजुटता है वो जनता के बीच में आए। ये बात अलग है कि बिहार के मुद्दे अलग हैं, रोजगार है, पलायन है, एसआईआर का कितना मुद्दा होगा वो 30 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन उसके इतर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा में और राज्यसभा में वॉकआउट होते थे, एकजुटता थी, वही एकजुटता उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आई है। ऐसा नहीं था कि उनको पता था वो जीतेंगे, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन बखूबी दिखाया है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति की रेस में सीपी राधाकृष्णन आगे रहे, जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले हैं। वहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए आगे रही। पहले ही आंकड़े लगभग फाइनलाइज थे, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया हुई है तो 452 वोट्स जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन के हिस्से में गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। सुबह से ही आज चुनावी माहौल रहा, सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराष्ट्रपति का रण एनडीए के नाम रहा है। नतीजों का हो गया है ऐलान। एनडीए ने मैदान मारा है, सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट्स सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं और जीत बड़ी एनडीए के खाते में गई। सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में यह मुकाबला रहा। सुबह 10 बजे से मतदान की आज प्रक्रिया शुरू हुई। शाम 5 बजे तक मतदान चला। शाम 6 बजे से मतगणना जारी हो गई और लगभग 7:30 बजे नतीजों का ऐलान हो गया। उपराष्ट्रपति पद की रेस में एनडीए ने बाजी मारी है। 452 वोट्स उनके नाम। इंडिया गठबंधन को 300 वोट्स मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन ये आंकड़ा भी बड़ा ही नजर आता है। इससे पहले हमने देखा विपक्षी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही थी। नतीजों का ऐलान हुआ। एनडीए की तरफ से जो दावेदारी थी वो मजबूती के साथ रखी गई और 452 वोटों से उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए अव्वल नंबर पर, सबसे पहले पर, यानी सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी चुनाव हार गए हैं। हालांकि उन्हें 300 वोट्स मिले। 452 वोट उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए के नाम रहा। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति देश के होंगे। सीपी राधाकृष्णन से जुड़ी हुई भी कुछ इंफॉर्मेशन यहां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का यह मुकाबला था और एक बड़े मैसेज के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। पिछले दिनों लामबंद होने की कोशिश विपक्षी पार्टियां करती रही और ऐसे में 300 का आंकड़ा
अब तक के इतिहास में एक बड़ा आंकड़ा ऑपोजिशन के लिहाज से माना जा रहा है, लेकिन बहरहाल एनडीए के खाते में 452 वोट्स गए और उपराष्ट्रपति की रेस में सीपी राधाकृष्णन आगे रहे। अदिति एक बार फिर से कनेक्टेड है। अदिति, आप इन आंकड़ों का जिक्र कर रही थी, जाहिर है इसके लिए मजबूती से दोनों ही पार्टीज की तरफ से जो फाइट है वो रखी गई, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि लगभग ये फाइनलाइज था, ये जो आंकड़ा आना है लगभग तय था, लेकिन कोशिशें पूरी तरीके से हुई है। फिर भी 300 का आंकड़ा भी एक जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है अदिति। वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ये तय हो गया। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले और इंडिया के जो पी सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 वोट से हराया गया है। तो जाहिर तौर पे ये एक मैसेज की कोशिश है। इसके साथ साथ देखिए, जहां तक बात 300 की है तो विपक्ष के खेमे में तो इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा है, और उसके अलावा विपक्ष के खेमे में तो इसको लेकर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है कि हम भले ही आंकड़ों में हारे हों पर मोराल हमारा नहीं हारा है। तो इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब बात जो लगातार विपक्षी क्रॉस वोटिंग को लेकर कर रहा था, तो आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग 25 वोट ज्यादा मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार को। मतलब अगर उस तरह से जिक्र करें कि जो एनडीए के उनका जो आंकड़ा था उसको देखें तो 25 वोट ज्यादा मिले हैं। ये अपने आप में एनडीए की एक बड़ी जीत है। आपने देखा कि सुबह वाईएसआर ने अनाउंस कर दिया था, इसके अलावा भी एब्सटेन भी हुए हैं, लेकिन 25 वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस एनडीए के उम्मीदवार को। ये मुद्दा है ये सोचने का कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि ये कहां पर जो है फॉल्ट हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि सुबह से विपक्ष जो है वो बार बार कह रहा था कि क्रॉस वोट होगा, क्रॉस वोट होगा, सांसद अपने मन की आवाज सुनेंगे, इस तरह की अपील भी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं 25 वोट ज्यादा मिले हैं, इसका मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है। ये एक बड़ी मैसेजिंग की बात यहाँ पर नजर आ रही है कि जो एनडीए ने सोचा था वो कर दिखा, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश जो थी वो कर दिया है। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के साथ सबसे बड़ी बात अदिति यहाँ पर ये हो जाती है कि इससे पहले चूंकि जब सवाल पूछे गए थे जगदीप धनखड़ को लेकर के, उस समय भी विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से बातें रख रहा था, वो देश को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन चूंकि इस समय स्थिति एनडीए की दोनों ही खेमे में बड़ी मजबूत है, फिर चाहे वो लोकसभा हो फिर चाहे वो राज्यसभा हो, ऐसे में नंबर आना या आंकड़ा आना लगभग फिक्स था। लेकिन मैसेजिंग स्ट्रांग होने का असर भी क्या इस पे पड़ सकता है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो इसके रिपरकशंस क्या दिख सकते हैं अदिति? एक तो बार बार जो ये सवाल दिख रहा था कि जगदीप धनखड़ को लेकर, वो सवाल आज खत्म होता है क्योंकि एनडीए को उतने ही अच्छे तरीके से वोटिंग हुई है। और अब ये इस पे जांच पड़ताल इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए कि 25 वोट जो ज्यादा मिले हैं एनडीए को, वो किस तरीके से, तो वो क्रॉस वोटिंग कहाँ हुई, वो प्लानिंग में कमी कहाँ राहुल गांधी की रही, मल्लिकार्जुन खड़गे की रही, पूरी इंडिया गठबंधन की रही। इसके साथ साथ आप देखिए, ये समझिए कि कांग्रेस ने इंडिया को 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिसमें से 15 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिले हैं। यानी कि बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। तो लोकसभा में इकलौता सांसद वाले जो शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने भी वोट डालने से इनकार कर दिया था। अगर धनखड़ ने जिस तरीके से 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे देने के बाद जो चुनाव हुआ, इसकी पूरी कड़ी समझेंगे तो एनडीए ने भी बखूबी बारीकी तरीके से जहां पर वोट काट सकते थे या क्रॉस हो सकता था वो हुआ है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने भी जो अपना पूरा चुनाव है, जैसे अगर मैं आपको पुराने भी रिकॉर्ड की बात करें, राइट, तो अवैध वोट हुए थे 2022 में 15, 2017 में 11। अवैध वोट हर बार होते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई भी वोट गलत खारिज ना कर दिया जाए। तो आधी इस बात की होती है। तो अभी पूरे आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 25 वोट जो है वो क्रॉस वोट किए गए। अच्छा, जरा उम्मीदवारी को लेकर के भी अदिति बताइए कि सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के पीछे इंडी गठबंधन की रणनीति क्या थी, और अगर एनडीए खेमे की भी बात करें तो भी इसका भी जवाब दीजिए कि सीपी राधाकृष्णन ही क्यों? देखिए, पहले जो बन के आए हैं उपराष्ट्रपति, उनका जिक्र कर लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के लिहाज से बात करें तो पहला संघ की पृष्ठभूमि है,
पुरानी बीजेपी में काम कर चुके हैं, नई बीजेपी में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, संवैधानिक पद का उनको एक्सपीरियंस है। और जिस पद के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था उस पद में संवैधानिक पद के साथ साथ पार्टी की लाइन एंड लेंथ को समझना, सरकार किस तरीके से काम करती है उसको समझना, आरएसएस की विचारधारा के साथ पुराने नए बीजेपी का अमेलगमेशन, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरी बड़ी बात है कि मोदी अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के तिरुपुर में वो रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे बोलते हैं कि अर्जुन की आंख की तरह तमिलनाडु पे लंबे समय से उनकी नजर है। उन्होंने अन्नामलाई को इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अलायंस ना होने के चलते उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाया। इस बार तो भले ही इसका इम्पैक्ट हो या ना हो, पर जिस दिन अमित शाह चुनाव करके जब जाएंगे, जब आज जीत हो गए और जब अगली बार तमिलनाडु जाएंगे, तो वहां पर वो ये मैसेज देंगे कि हमने तमिलनाडु से एक ओबीसी व्यक्ति को चुनकर, जो पहली बार इतिहास में हुआ है कि तमिलनाडु से बने होंगे पहले बट ओबीसी नहीं बना, ओबीसी व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति को हमने संविधान के इतने सर्वोच्च पद पे बिठाया है। तो ये हमारा वादा है आपसे कि हम तमिलनाडु को एक अलग स्तर पे लेकर जाना चाहते हैं, विश्वास कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक वो बैरियर, जो छोटे छोटे बैरियर होते हैं वो टूटते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेजिंग की कोशिश है। भाजपा तमिलनाडु के वो सचिव रहे हैं, कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, कोरियर बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं और झारखंड के राज्यपाल बने, और उसके बाद अतिरिक्त तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी राज्यपाल, आखिरी महाराष्ट्र के राज्यपाल, यानी कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के बनाए तो एक। तो ये उनका बैकग्राउंड है। अब रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी भले ही बात कर रही थी तमाम बातें, पॉलिटिकल एंगल भी था, लेकिन इंडी गठबंधन ने बार बार ये बात की कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है ये लड़ाई। इसीलिए इस बार आपने देखा कि रीजनलिज्म पे वोट नहीं हुआ, तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिलनाडु के लोगों ने वोट नहीं किया। नहीं तो ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु की जो पार्टी है वो क्या वोट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई थी, जीत की लड़ाई थी, इसलिए लामबंदी हुई। अब आप उनका कानूनी करियर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी, संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों के विशेषज्ञ हैं, और आंध्र प्रदेश में एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने, गुवाहाटी हाई के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और सेवानिवृत्त हुए। लेकिन बीजेपी हमेशा ये प्रचार कर रही थी कि इनके जितने भी बड़े फैसले थे वो जनमानस विरोधी रहे। सबसे बड़ा नक्सल का जो एक अभियान सिविलियंस ने शुरू किया था, उसके खिलाफ इनका वर्डिक्ट आया था। इन्होंने कहा था कि सिविलियंस नक्सल के खिलाफ अभियान शुरू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नक्सल आज तक सरकार ही कहती है कि नक्सल चिपका रहा, वरना अगर सिविलियंस नहीं सपोर्ट करते नक्सल को, उनके विरोध में खड़े थे, तो नक्सल कब का खत्म हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं विचारधारा की, एडमेंट विचारधारा की भी प्रचार बीजेपी ने किया था, पर विचारधारा की बात थी। अब देखिए तमाम तरीके के बात आए, तमाम तरीके की बात भी निकल कर आई, और ये पूछा गया कौन किसको वोट देगा। अंततः जीत उसी एनडीए की होनी थी। लेकिन अदिति, इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा था कि लगभग 315 या 320 तक तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अपने दावे से कम सीट्स हासिल हुए हैं। क्या ये इंडिया गठबंधन के मनोबल को तोड़ेगा? दूसरा सवाल ये अदिति कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को एक मुद्दा बनाया गया, क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक समीकरण है या फिर जनता पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि क्या जाटों में इसका फर्क पड़ रहा है क्या, और वो भी खास तौर पे राजस्थान में। इसके लिए भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, पर इसके लिए प्रचार तैयारी इस तरह की है कि जो राजस्थान की जो बीजेपी की कार्यकारिणी बन रही है, जो बनने वाली है नई कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी में जाट बड़े नेता जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि जो मुद्दा कांग्रेस बना रही है, तो कांग्रेस बार बार सवाल करती है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की वोटिंग के बाद वो मुद्दा खत्म हो गया है, वो मुद्दा अब नहीं होगा, क्योंकि अब देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज सहज करने वाली बातें करती हैं, तो आज पूरे दिन जगदीप धनखड़ का मुद्दा रहा। ये वही जगदीप धनखड़ है जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस और इंडी गठबंधन लेकर आए थे। जी,
तो देखिए आदित्य, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन साझा कर रही थी। इनसाइड स्टोरी क्या है इसको समझना जरूरी। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में यहाँ मुकाबला होना था और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो चुका है। 452 वोट्स मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, और लगभग ये फाइनल पहले से ही आंकड़ों के हिसाब से माना भी जा रहा था।